یہ وہ رات تھی جب حسد بول اٹھی۔ دروازہ کھولو لبید، ہم جانتے ہیں تم اندر ہو۔ جو لوگ رات کے اندھیرے میں مدد مانگنے آتے ہیں انہیں اتنا شور نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے ہم سے کہا تھا کہ تم انہیں روک سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں سونا دیا، تمہاری ہر بات مانی، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ ان کی باتیں مدینہ کے ہر کان تک پہنچ رہی ہیں۔ بازاروں میں انہی کا ذکر ہے، گھروں میں انہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حسد ہے، وہ حسد جو دل کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ تم لوگ میرے پاس آدھا کام لے کر آئے تھے اور پورا نتیجہ مانگ رہے تھے۔ کیسا آدھا کام؟ دور کھڑے ہو کر کسی کے سائے کو باندھا نہیں جا سکتا۔ کسی شخص تک پہنچنے کے لیے اس کی کوئی نشانی چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وہ رسی ہے جو اس چھپے ہوئے راز کو ایک پرانے کنویں میں نیچے اتارتی ہے۔ کیسی نشانی؟ کوئی ایسی چیز جسے انہوں نے چھوا ہو۔ کنگھی، اس کنگھی میں رہ جانے والے بال، یا کوئی چھوٹی سی چیز جو ان کے استعمال میں رہی ہو۔ یہی وہ ہاتھ ہے جو گرہ باندھتا ہے۔ اور اگر ہم وہ چیز تمہارے پاس لے آئیں تو جو کام تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ ہم نے ان سے بحث کی، ہم نے ان کا مذاق اڑایا، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی، پھر بھی لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ بس ہمیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اب جو میں تم سے مانگوں گا وہ مجھے لا کر دو۔ ایک کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے بال، باقی کا کام میرا ہے۔ یہیں سے سورہ الناس کے پیچھے چھپی کہانی، ان کی باتیں مدینہ کے ہر کان تک پہنچ رہی ہیں۔ بازاروں میں انہی کی باتیں ہو رہی شروع ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اکثر مسلمان گھروں میں بچوں کو قرآن یاد کروایا جاتا ہے، لفظ کے بعد لفظ، آیت کے بعد آیت، چاہے وہ اس کا مطلب سمجھیں یا نہ سمجھیں، انہیں چاروں کل ضرور یاد کروائے جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو زندہ ہے لیکن ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ نہیں ہوتا۔ سورہ الناس کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا تھا، لیکن یہ کس نے کیا؟ اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ اس کہانی میں ہم یہی جانیں گے۔ کہانی مدینہ سے شروع ہوتی ہے، کھجور کے درختوں اور سکون کا شہر۔ صبح کی روشنی تنگ گلیوں میں پھیل رہی تھی، اذان کی آواز ابھی تک گھروں کی چھتوں کے درمیان گونج رہی تھی، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، بچے گھروں کے آنگن کے درمیان ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زندگی ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ایک چھوٹے سے گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کی طرح پرسکون، نرم دل اور صبر کرنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے بھی تھے، لیکن کچھ دنوں سے آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر اچانک رک جاتے، جیسے آپ بھول گئے ہوں کہ نماز پڑھ چکے ہیں یا نہیں۔ کبھی آپ کہتے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں اور چند لمحے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں محسوس کر لیا تھا۔ وہ ہر دن خاموشی سے آپ کو دیکھتی رہیں۔ یہ الجھن بہت معمولی اور ہلکی تھی، لیکن عجیب تھی۔ ایسی الجھن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت اور فطرت کے بالکل خلاف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل گھبرا گیا، لیکن ان کے ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، صحابہ آتے اور جاتے تھے، مسجد آوازوں اور قدموں کی آہٹ سے بھر جاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، شاید عبادت میں گزری لمبی راتوں کی وجہ سے، یا شاید کوئی اور بات ہے۔ اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مدینہ کی ان پرسکون گلیوں کے باہر کیا ہو چکا تھا۔ کچھ تاریخ شروع ہو چکا تھا، ایک ایسی چیز جو حسد کی گراہوں سے بندھی ہوئی تھی، جسے جلن نے طاقت دی تھی اور جو نفرت سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ جادو تھا، ایسا جادو جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسا جادو جو مدینہ کے ہر دل کو آزمانے والا تھا۔ لیکن یہ سب شروع کیسے ہوا؟ حسد اتنی گہری تاریکی میں کیسے بدل گئی؟ مدینہ پرسکون تھا، اسلام کا پیغام بھی پھیل رہا تھا، لوگوں کے دل کھل رہے تھے، گھر روشنی سے بھر رہے تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا، بہت جلد، ورنہ یہ شہر بھول جائے گا کہ یہاں اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔
लेकिन जिन लोगों से ये रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उनके लिए ये बदलाव एक खतरा था। उनकी बातें हर घर तक पहुंच रही हैं। उनका हर नया मानने वाला हमारी ताकत को कमजोर कर रहा है। अगर लोग हमें पूरी तरह भूल गए तो ये सरगोशी पहले खौफ में बदली और फिर खौफ नफरत में बदल गया। उन लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जो अपने तोटकों के लिए मशहूर था, गिराहें बांधने और उन पर फूंकने वाला शख्स, सरगोशियों और सायों में काम करने वाला शख्स। उस शख्स का नाम लबीद इब्न अल आसम था। वो लोग छुपकर उसके पास आए। उनके हाथों में सोना था और जबानों पर वादे। वो सच नहीं चाहते थे, वो खामोशी चाहते थे। लबीद खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो इस नाम को पहले भी सुन चुका था, वो शख्स जिसके पैगाम ने मक्का के मुतकब्बिर सरदारों के घमंड को हिला कर रख दिया था, और लबीद के लिए इतना ही काफी था। तुम चाहते हो कि उन्हें रोक दिया जाए, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज लाओ जिसे उन्होंने छुआ हो। कंघी, उस कंघी में रह जाने वाले बाल या कोई छोटी सी चीज जो उनके इस्तेमाल में रही हो। उसने बहुत ज्यादा चीजें नहीं मांगी थी, सिर्फ बाल का एक टुकड़ा, एक कंघी और कोई ऐसी चीज जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुआ हो। लेकिन ये चीजें हम लाएंगे कैसे? उनके करीब पहुंचना आसान नहीं है, और अगर किसी ने हमें देख लिया तो तुम्हें खुद उनके करीब जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर यह काम कौन करेगा? ये लड़का। ये लोग बच्चों पर जल्दी शक नहीं करते। ये खामोशी से जाएगा, चीज उठाएगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। क्या तुम यह काम कर सकते हो? मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि मुझे क्या लाना है। जब मैं यह चीज ले आऊंगा तो क्या वाकई उन्हें रोका जा सकेगा? तुम सिर्फ वह चीज लेकर आओ, उसके बाद क्या होगा वह तुम्हारा काम नहीं है। उसने उन चीजों को खजूर के दरख्त के सूखे छिलके के अंदर लपेट दिया। उसने एक गिराह बांधी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कुल 11 गिराहें बांधी गईं। हर गिराह को हसद और फूंक के साथ बंद किया गया। जब यह काम मुकम्मल हो गया तो उस चीज को रात की तारीकी में वहां से ले जाया गया। वो लोग घरों से दूर निकल गए, खामोश बागों को पार किया और एक पुराने भुला दिए गए कुएं तक पहुंच गए। ये दरवन का कुआं था। वहीं उन्होंने अपनी बनाई हुई चीज को छुपा दिया, आंखों से छुपा हुआ, दिलों से छुपा हुआ। उन्हें यकीन था कि इसे कभी ढूंढा नहीं जा सकेगा। उन्हें लगा कि उनकी गिराहें सच को बांध सकती हैं। उन्हें लगा कि तारीकी नूर के रब से छुप सकती है। लेकिन जो अल्लाह हर छुपी हुई चीज को देखता है, वो पहले ही लिख चुका था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन उस वक्त क्या होता है जब उनकी तैयार की हुई तारीकी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूने लगती है। जब आपकी पुरसुकून घर की फिजा बोझल होने लगती है और किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मदीना में दिन गुजरते रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा की तरह लोगों के दरमियान चलते फिरते रहे। आप नरम दिल थे, सब्र करने वाले थे और मुस्कुराते थे। लेकिन कभी कभी आप अचानक रुक जाते, जैसे कोई ख्याल आपके जहन से निकल गया हो और आप उसे ढूंढ रहे हो। आप किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाते, फिर रुक जाते, जैसे आपको यकीन ना हो कि आप क्या करने जा रहे थे। कभी आप कहते कि मैं ये काम कर चुका हूं, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। ये छोटे छोटे लम्हे थे, लेकिन एक दिल के लिए इन्हें महसूस करना काफी था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खामोशी से देखती रही। वो देखती रही, इंतजार करती रही और दुआ करती रही। उनका दिल सब्र से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में फिक्र नजर आती थी। वो जानती थी कि कुछ तो गलत है, हालांकि कोई दूसरा शख्स इसे देख नहीं पा रहा था। जब कोई जवाब ना मिला तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस एक दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए जिसे आपने हमेशा खटखटाया था, अल्लाह के दरवाजे की तरफ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू किया, सच जानने के लिए, रहमत के लिए और शिफा के लिए। और वो ज़ात जो हर सरगोशी को सुनती है, उसने जवाब दिया। एक रात जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थे, आपने उन्हें बताया कि अल्लाह ने ख्वाब में आपको इसका जवाब दिखा दिया है। 2 फरिश्ते आपके पास आए। उन्होंने बताया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नुकसान पहुंचाने वाला अमल किया गया है। उन्होंने उस शख्स का नाम बताया, लबीद इब्न आसम। वो बनु जुरैक कबीले से था, एक ऐसा शख्स जो अपने गलत आमाल और यहूदियों में मौजूद अपने साथियों की वजह से जाना जाता था। फरिश्ते ने बताया कि उसने क्या चीजें इस्तेमाल की थी, एक कंघी, बालों के कुछ टुकड़े और खजूर के दरख्त का सूखा छिलका। फिर उन्होंने बताया कि वो चीज कहाँ छुपाई गई थी, दरवन के पुराने कुएं में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद से बेदार हुए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो सब बताया जो आपने देखा था। उनकी फिक्र सुकून में बदल गई, क्योंकि जो चीज पहले छुपी हुई थी अब उसका राज खुल चुका था। उन्होंने अपनी साजिश को कुएं की गहराइयों में दफना दिया था।
लेकिन ईमान उससे भी ज्यादा गहरा पहुंच गया। यही वो दुआ थी जिसने जादू को तोड़ दिया। जब सुबह हुई तो जवाब पहले ही लिखा जा चुका था। जो चीज रात की तारीकी में छुपाई गई थी, अब उसे दिन की रोशनी में ढूंढ लिया जाना था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे शख्स थे जिनके सब्र की कोई हद नहीं थी, और अब जब आप जान चुके थे कि आपके साथ क्या किया गया है, तब भी आपकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु और चंद सहाबा को बुलाया। वो सब मदीना की खामोश गलियों से गुजरते हुए चले। सुबह की हवा ठंडी थी, सूरज अभी मुश्किल से निकला था। वो दरवन के कुएं तक पहुंच गए। एक पुराना, खामोश और भुला दिया गया कुआं। कुएं के अंदर का पानी बहुत गहरा और तरीक था। खजूर के दरख्त कुएं के करीब झुके हुए थे, जैसे वो किसी राज की हिफाजत कर रहे हो। वहां खजूर के दरख्त के सूखे छिलके में लपेटा हुआ एक बंडल मिला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक के बाद एक आयत पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज साफ था, हर लफ्ज पुरसुकून था। यही वो अल्फाज थे जो बाद में सूरह अल फलक और सूरह अन्नास के नाम से जाने गए। पहली आयत के साथ एक गिरह खुल गई, दूसरी आयत के साथ दूसरी गिरह खुल गई, तीसरी आयत के साथ आसपास की फिजा हल्की होने लगी, यहाँ तक कि आखिरी आयत पढ़ी गई और हर गिरह खुल गई। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर वापस आए तो हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने आपका चेहरा देखा और जान गईं कि शिफा आ चुकी है। उन्होंने नरमी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उस चीज को बाहर निकालकर लोगों को क्यों नहीं दिखाया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है और मुझे खौफ था कि इसे दिखाने से लोगों के दरमियान कोई नया नुकसान न फैल जाए। आप उन लोगों को सबके सामने बेनकाब कर सकते थे, आप उनके खिलाफ इंसाफ का हुक्म दे सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदले की जगह रहमत को चुना। आप ऐसे ही थे, ऐसे शख्स जो जुल्म का शिकार होने के बाद भी माफ कर देते थे। फिर वो आयत नाजिल हुई, गुस्से की आयत नहीं बल्कि अल्लाह की पनाह मांगने वाली आयत। ऐसे अल्फाज जो कयामत तक इंसानी दिलों की हिफाजत करते रहेंगे। सुबह और इंसानियत की पनाह वाली आयत, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए, मैं सुबह को फाड़ कर रोशनी निकालने वाले रब की पनाह मांगता हूँ, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और रात की तारीकी के शर से जब वो फैल गए, और गिराहों पर फूंकने वालों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। फिर वो आखिरी सूरह नाजिल हुई जो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए थी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, उस छुप कर सरगोशी करने वाले के शर से जो इंसान के दिलों में वसवसे डालता है। ये वो रात थी जब हसद बोल उठा। उनकी बातें हर घर तक पहुंच रही हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी क्या सुना। सूरह अल फलक, बाहर से आने वाले खतरों के मुकाबले में एक ढाल। अल फलक का मतलब है सुबह का फूटना, वो लम्हा जब रात आखिरकार हार मान लेती है और रोशनी की पहली किरण तारीकी को चीर कर बाहर निकलती है। अल्लाह हमें बता रहा है कि जब खौफ तुम्हें तारीकी की तरह घेर ले तो उस जात को पुकारो जो उस तारीकी को फाड़ कर रोशनी निकाल सकती है। कहो, मैं सुबह को फाड़ कर रोशनी निकालने वाले रब की पनाह मांगता हूँ, हर उस बुराई से जो उसने पैदा की, रात की तारीकी से जब उसके साये फैल जाएं, उन सरगोशियों से जो गिराहों पर फूंकी जाती हैं, और हसद करने वाले के हसद से जब वो अंदर ही अंदर जलने लगे। जैसे अल्लाह कह रहा हो, अनदेखी बुराई से अपने हाथों के जरिए मत लड़ो, मेरे जिक्र के जरिए उसका मुकाबला करो। हर नुकसान, हर बद्दुआ, हर हसद भरी नजर अल्लाह की हिफाजत में छुपने वाले शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर अल्लाह हमें एक और तरह की हिफाजत सिखाता है, बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर पैदा होने वाली सरगोशियों से। कहो, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, वो ख्यालात जो खामोशी से दिल में दाखिल होते हैं, जो तुम्हारे दिल में शक पैदा करते हैं, जो तुम्हें हसद करना सिखाते हैं, जो तुम्हें भुला देते हैं कि तुम असल में कौन हो। वो आवाज जो कहती है तुम नमाज के बगैर भी बिल्कुल ठीक हो, तुम अपने दम पर ताकतवर हो, तुम्हें अल्लाह की जरूरत नहीं है। यही वसवसा है, वो छुप कर सरगोशी करने वाला। वो आता है और फिर धुएं की तरह गायब हो जाता है, लेकिन अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है। और अल्लाह हमें बताता है, मुझे अपना रब याद रखो, अपना मालिक याद रखो, अपना अल्लाह याद रखो, वो जात जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम पर हुकूमत करती है और जो तुम्हारी मोहब्बत और इबादत की हकदार है।
क्योंकि जब तुम्हारा दिल अपने मालिक को याद करता है तो हर वसवसा अपनी ताकत खो देता है। इसी तरह ये सूरतें नाजिल हुई, पनाह की 2 सूरतें, रहमत की 2 ढालें। इनकी तिलावत नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक होठों से निकलकर आपकी उम्मत के दिलों तक पहुंची। बच्चों ने सोने से पहले इन्हें याद किया, मुजाहिदीन ने जंग से पहले इनकी तिलावत की और हर मोमिन ने इन्हें अनदेखी और अनकही बुराइयों के खिलाफ अपनी ढाल बना लिया। कुआं बंद कर दिया गया, जादू टूट गया, लेकिन सरगोशियां कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि जो हसद उस वक्त जल रही थी वो हसद आज भी जल रही है। वही जलन, वही नफरत, सिर्फ उसका चेहरा बदल गया है। आज वो अल्फाज के पीछे छुप जाता है, स्क्रीन्स के अंदर छुप जाता है, ऐसे दिलों में छुप जाता है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों से अपना मुकाबला करके जलते रहते हैं। हम लोगों की जिंदगियां स्क्रीन पर देखते रहते हैं, दूसरों की नेमतें गिनते रहते हैं और अपनी नेमतों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हसद आज भी एक आग है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, किसी और रूह को अल्लाह की याद दिलाएं, किसी और दिल को रोशनी तक पहुंचने दीजिए। इस सफर में हमारा साथ दीजिए ताकि हम सब मिलकर कुरान की हर कहानी को दोबारा जिंदा कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी दुआएं, आपका साथ और आपकी मोहब्बत इन नसीहतों और याद दहानियों को जिंदा रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फरीदा ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सभी पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।